نیوز بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ملتان میں آج ہڑتال نہیں ہوگی۔ صنعتی اور تاجر برادری کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب۔ ضلعی صدر چیمبر آف اسمال انڈسٹری شیخ طاہر علی کہتے ہیں علامتی احتجاج جاری رہے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملتان میں آج ہڑتال نہیں ہوگی۔ صنعتی اور تاجر برادری کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ ضلعی صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈرز شیخ طاہر علی کہتے ہیں علامتی احتجاج جاری رہے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملتان میں آج ہڑتال نہیں ہوگی۔ صنعتی اور تاجر برادری کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ سید زہیب بخاری اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے۔ آج بالکل ملک میں آج ہونے والی جو ہڑتال تھی اس کو جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے، اور اس صورتحال میں اگر ہم بات کریں تو گزشتہ روز جو ہے وہ وفاقی وزیر خزانہ سے جو ہے وہ صنعت کاروں کی اہم ملاقات بھی ہوئی، اور ذرائع کے مطابق یہ ملاقات تقریباً 4.5 گھنٹے تک جو ہے وہ جاری رہی، جو کہ ایک پازیٹیو نوٹ پر جو ہے وہ اینڈ ہے۔ سارے صورتحال پر مزید بھی بات کریں گے۔ ضلعی صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈرز شیخ طاہر علی صاحب جو ہے اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ شیخ صاحب، یقیناً ابھی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے کہ علامتی احتجاج جاری رہے گا، لیکن ہڑتال کی طرف جو ہے وہ معاملہ اگلے 30 روز تک جو ہے وہ روک دیا گیا۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو جیسے علم ہے کہ ہمارا ایک الائنس بنا ہے چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے ساتھ، ہم نے یقیناً ان کے ساتھ مشاورت سے ہی جو فیصلہ کرنا ہے اس پر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہمارے جو چیئرمین ہیں خواجہ محمد شفیق صاحب، ان کی ہدایت پر ہی ہم نے انشاءاللہ ہڑتال کرنی ہے۔ ہڑتال کو فی الحال ہم چند روز کے لیے مؤخر کر رہے ہیں، اور احتجاج آپ کو پتہ ہے وقفاً چلتے رہیں گے۔ تمام شہروں میں ہر جگہ مختلف علاقوں میں احتجاج ہوتا رہے گا جب تک حکومت ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت کئی عرصے سے لالی پاپ دیتی ہوئی آئی ہے کہ ہم نے یہ چیز مؤخر کر دی، یہ مؤخر کر دی، لیکن وہ صرف زبانی ہوتا ہے، کوئی اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا۔ اس دفعہ ہم نے ان کو اس بات کا انشور کیا ہے کہ جب تک وہ ہمیں ان تمام ایکٹ کو ڈی نوٹیفائیڈ نہیں کرتے، ہم لوگ اپنی اس احتجاج کی کال سے، ہڑتال کی کال سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن اس کو چند روز کے لیے مؤخر کیا گیا ہے تاکہ پورے پاکستان میں یکجان ہو کر اور یک آواز ہو کر اس کو ہڑتال کو کامیاب بنایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ہمارے شیخ طاہر علی صاحب جو ہیں وہ موجود تھے، اور یہی فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ آج ہونے والی ہڑتال جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور اس سے قبل بھی ہم نے جس طرح دیکھا کہ جو مختلف تاجر تنظیمیں تھیں وہ اس سے پہلے ہی لا تعلقی کا جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ کر چکے تھے، تاہم اب یہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا کہ اگلی میٹنگ تک جو ہے وہ احتجاج جو ہڑتال ہے وہ موقع رہے گی، جبکہ ہڑتال جو علامتی احتجاج کا سلسلہ ہے وہ وقت سے جاری رہے گا۔ جی سید زہیب بخاری اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس، پاکستان ریلوے نے بھی پھر کرائے بڑھا دیے۔ مسلسل تیسری بار کرایوں میں اضافے پر مسافروں کا شدید رد عمل۔ کہتے ہیں تنخواہیں وہی پرانی، لیکن کرائے ہر 15 روز بعد بڑھا دیے جاتے ہیں۔ پاکستان ریلوے کے مسلسل تیسری بار کرایوں میں اضافے پر مسافروں کا شدید رد عمل۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جب بھی بڑھیں تو پاکستان ریلوے نے بھی مسافر اور مال بردار ٹرینوں کے کرایوں میں اضافے کی ٹھان لی۔ مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں ایک بار پھر سے 2% اضافہ کر دیا گیا۔ کوئلہ مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں 3%، فرٹیلائزر پر 2% اضافہ کیا گیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ عوام جو ہے اس کے لیے سہولیات کے اندر اضافہ کریں، کرایوں کے اندر کمی کریں۔ جس طرح پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ گئی، ٹرین کے کرائے بھی بڑھ گئے، عام عوام پہلے ہی کھانے کے لیے ترستی ہے، ان کی پہلے گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی، اور پیٹرول اور ان چیزوں کے کرائے جب بڑھ جاتے ہیں تو عوام مزید پستی چلی جاتی ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کم از کم یہ جو ضروریات زندگی کی کچھ چیزیں ہیں، کم از کم اس کے اندر عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ کرایہ بڑھنے سے روزانہ سفر کرنے والوں پر براہ راست اثر پڑے گا۔ تنخواہیں وہی پرانی ہیں، لیکن کرائے ہر 15 روز بعد بڑھا دیے جاتے ہیں۔ لمبے سفر پر عام آدمی کا سفر مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ طلبہ اور مزدور طبقے کے لیے بھی کوئی رعایتیں نہیں ہیں۔ ایک تو معذور آدمی ہوں، ٹھیک ہے، تھوڑا سی تنگی بھی ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو کہ 2 سے 3% کرائے میں اضافہ کیا ہے، اس سے یہ ہے کہ پھر سہولیات بھی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، نہ کوئی صفائی ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، سارا حال بحال ہوتا ہے۔ اور اے سی والا کرواتے ہیں، اے سی پارلر کروائے تو اس میں بھی انہوں نے وہی اے سی چلتا ہی نہیں ہے ان کا۔ مسافروں نے اعلیٰ حکام سے ریلوے کے کرایوں میں اضافے کی بجائے کمی کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ ناظرین، ملتان نشتر ہسپتال اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں سنگین مالی بے ضابطگیوں کا یہ معاملہ ہے۔ مشینری کی سروس اور مرمت کے کانٹریکٹس کی مد میں
5 करोड़ 77 लाख की बेज़ाब्तगियां। हस्पताल इंतजामिया ने वारंटी खत्म होने से कबल ही मुरम्मत के महंगे मुआहिदे किए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान निश्तर हस्पताल और निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में संगीन माली बेज़ाब्तगियों का मामला। मशीनरी की सर्विस और मुरम्मत के कॉन्ट्रैक्ट्स की मद में 5 करोड़ 77 लाख की बेज़ाब्तगियां। मुल्तान में सरकारी डॉक्टर्स का फ्रॉड पकड़ा गया। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेने वाले डॉक्टर्स निजी अस्पतालों में भी काम करते रहे। पीडैक के तहत इंक्वायरी मुकम्मल। 10 डॉक्टर्स ने इंक्वायरी कमेटी के सामने इकरार जुर्म कर लिया। गंदा है पर धंधा है। निश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स का कौमी खजाने पर डाका और कवानीन से खिलवाड़ पकड़ा गया। इंक्वायरी कमेटी ने 10 डॉक्टर्स को मुजरिम करार दे दिया। डॉक्टर्स ने इंक्वायरी कमेटी के सामने एतराफे जुर्म भी कर लिया। निश्तर अस्पताल के 10 सरकारी डॉक्टर्स नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेते रहे और साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में काम करके भी माल बनाते रहे। पकड़े जाने वाले 12 डॉक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई तो 10 ने इकरार जुर्म कर लिया, जबकि डॉक्टर अनम ज़ारा और महविश सईद को इल्जामात से बरी कर दिया गया। इकरार जुर्म करने वालों में डॉक्टर शहजाद शौकत, डॉक्टर कमाल मुस्तफा, डॉक्टर तैमूर चुगताई, डॉक्टर मोहम्मद सईद, डॉक्टर राना जावेद, डॉक्टर नदीम मंशा, डॉक्टर फातिमा, डॉक्टर आयशा ज़हूर, डॉक्टर सादिया फैज और डॉक्टर सिद्रा शामिल हैं। इंक्वायरी कमेटी ने 10 डॉक्टर्स को संशोर करने की सिफारिश करके रिपोर्ट वजीर आला मरियम नवाज को भेज दी है। कैमरा टीम के साथ गौहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। पंजाब फूड अथॉरिटी जुनूबी पंजाब में मिलावट माफिया के खिलाफ मुतहरिफ। मुजफ्फरगढ़ में जूस प्लांट पर छापा। 5500 किलो खराब आम, 5 लीटर केमिकल, 40 किलो दीगर इज़्ज़ा तलफ। मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद खान मक्सी का टीम के हमरा जूस प्लांट्स पर छापा। 5500 किलो खराब आम, 40 किलो एक्सपायरी मसनूआत, 5 लीटर केमिकल्स तल्फ कर दिए। प्लांट मालिक को 1,50,000 रुपए जुर्माना आए। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना था कि प्लांट में पाबंदी लगे गले सड़े आमों से जूस तैयार किया जा रहा था। बुरेवाला में भी पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। डायरेक्टर ऑपरेशन जुबैर अहमद एजाज की सरबराही में 3 फूड प्रोडक्शन यूनिट्स पर छापे। 500 किलो फंगस ज़दा पनीर, 100 किलो मिलावटी खुराक तल्फ कर दी। खिलाफ वर्जी पर 2,45,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। कार्रवाइयां गग्गू मंडी, शेख फजल रोड और लुडन रोड बुरेवाला में की गई। दरिया जहलम में सैलाबी सूरत-ए-हाल मामूल पर आ गई। खुशाब के मकाम पर दरिया में 50,000 क्यूसेक पानी बह रहा है। दरिया जहलम में पानी की सतह कम हो गई। खुशाब में दरिया जहलम मामूल के मुताबिक बह रहा है। दरिया जहलम में रसूल बैराज पर पानी की आमद 50,000 और अखराज 38,000 क्यूसेक है। इंतजामिया के मुताबिक दरिया में पानी की सतह काफी नीची है। 1 लाख क्यूसेक से जायद पानी बआसानी गुजर सकता है। महकमा इनहार को 1,30,000 क्यूसेक रेले की इतला पर हाई अलर्ट जारी किया गया था। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया गया। भीरा शहर और गिरदोनवा में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरिया किनारे खड़ी मकई और जवार की फसलें मुतासिर। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशन गोई कर दी। शहर के नवाही इलाकों में दरिया जहलम में पानी की सतह कम हो गई। गुज़िश्ता रात 1,36,000 क्यूसेक का रेला गुजर चुका। महकमा मौसमियात ने इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया था, जिस पर जिला इंतजामिया की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया था। दरिया जहलम में आज 21,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। रेड अलर्ट खत्म होने पर इलाका मकीनों ने घरों को वापसी शुरू कर दी। कमिश्नर सरगोदा जहांजेब आवान और RPO खुरम शहजाद ने खुशाब में दरिया जहलम पुल का दौरा किया। उन्होंने हिफाजती इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। रिलीफ कैंप्स और रेस्क्यू पॉइंट्स भी चेक किए गए। कमिश्नर को ब्रीफिंग में बताया गया कि खुशाब पुल पर इस वक्त पानी का बहाव 21,660 क्यूसेक है। रसूल बैराज से 1,27,000 क्यूसेक पानी का रेला छोड़ा गया था। मुमकिन सैलाब के पेश नजर दोनों इजला की इंतजामिया मुकम्मल मुतहर्रिक है। कमिश्नर ने इस मौका पर मुताल्लिका इदारों को लम्हा ब लम्हा सूरत हाल पर नजर रखने की हिदायत भी की। आपको बताएं कि भावनगर की आवाम के लिए तालीम दोस्त का बड़ा इकदाम। पंजाब हुकूमत ने नई यूनिवर्सिटी की क़याम की मंजूरी दे दी। इस्लामी यूनिवर्सिटी के सब कैंपस को अलहदा जामे में तब्दील करने की मंजूरी दे दी गई है। अलग यूनिवर्सिटी का मंसूबा ADP 2025-26 में शामिल। हुकूमत की जानिब से 2,000 मिलियन की खती रकम भी मुख्तस यूनिवर्सिटी ऑफ भावनगर के नाम से PC1 के लिए 21 जुलाई तक दरख्वास्त जमा कराने की हिदायत। शहरियों ने अलग यूनिवर्सिटी के क़याम को एक संगे मील करार दे दिया। भावनगर की आवाम के लिए तालीम दोस्त का बड़ा इकदाम। पंजाब हुकूमत ने नई यूनिवर्सिटी के क़याम की मंजूरी दे दी है। इस्लामी यूनिवर्सिटी के सब कैंपस को अलहदा जामे में तब्दील करने की मंजूरी दी गई है।
अलग यूनिवर्सिटी का मंसूबा ADP 2025-26 में शामिल। हुकूमत की जानिब से 2000 मिलियन की खती रकम भी मुख्तस यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलगर के नाम से PC1 के लिए 21 जुलाई तक दरख्वास्त जमा कराने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर मनकीरा ज़हीरुद्दीन बाबर की जानिब से सुथरा पंजाब प्रोग्राम की मशीनरी इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन की गई। प्रोजेक्ट मैनेजर कामरान शबीर ने असिस्टेंट कमिश्नर को मशीनरी का मुआयना करवाया। मैनेजिंग डायरेक्टर जुल्फिकार अली चीना ने मशीनरी की तादाद और तफसीलात से आगाह किया। बताया 45 रिक्शा, 4 डंपर, 8 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 मैकेनिकल वॉशर, 1 मैकेनिकल स्वीपर, 3 बकेट, 2 एक्सीवेटर, 1 मैकेनिकल लिफ्टर शामिल है। असिस्टेंट कमिश्नर मनकीरा के मुताबिक सुथरा पंजाब की जुमला मशीनरी वर्किंग हालत में पाई गई है। मुल्तान के सरकारी स्कूलों के लिए खुशखबरी, तज़ीन व आराइश और इमारतों की मरम्मत के लिए 3 अरब का बजट जारी। महकमा तालीम ने मुल्तान के सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठा लिया। तज़ीन और आराइश के लिए 3 अरब रुपए से जायद का बजट मंजूर। फंड से स्कूलों की खस्ताहाल कमरों, बैतुल खला, फर्नीचर की मुरम्मत का काम भी किया जाएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक 6 माह में सरकारी स्कूलों के तमाम मसाइल को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया जाएगा। CEO एजुकेशन का कहना है कि स्कूल में बेहतर तालीमी माहौल मुहैया करना अव्वलीन तरजीह है। डॉक्टर सफदर हुसैन वागा ने फंड्स की फराहमी को खुशाइन करार देते हुए मजीद कहा कि स्कूल की बेहतरी से ही तालीमी मयार में बेहतरी आएगी। साथ ही रिपोर्टर रिश्बा आसिफ और कैमरा टीम के हमरा रोही, मुल्तान। कोटछुट्टा में 6 माह से ज़ेर इल्तवा जोक रोड की तामीर का दोबारा आगाज। सड़क पर काम का आगाज पर शहरियों का अरकान सूबाई असम्बली से इजहार तशक्कुर। कोटछुट्टा में 6 माह से ज़ेर इल्तिवा झोक कतरा रोड की तामीर का दोबारा आगाज। सड़क पर काम के आगाज पर शहरियों का अरकान सूबाई असम्बली से इजहार तशक्कुर। झोक कतरा रोड फंडिंग की अदम दस्तियाबी और ठेकेदार की सुस्ती के बायस 6 माह से इल्तिवा का शिकार थी। अहले इलाका की मुश्किलात पर अरकान सूबाई असम्बली का नोटिस। फंड्स के अजरा के बाद रोड की तामीर दोबारा शुरू करा दी। शहरियों का कहना था कि शाहराह पर पड़े पत्थर लोगों के लिए शदीद मुश्किलात का बायस थे। शहरियों ने सड़क को जल्द मुकम्मल करने और मायार पर कोई समझौता न करने का भी मुतालबा किया है। 9 माह से ये ज़ेर इल्तवा था, 30/6 तक ठेकेदार ने मुकम्मल कर देना था, मुकम्मल नहीं हुआ था। हमें आने जाने में बड़ी दुश्वारी थी। हम शुक्रगुजार हैं रोही टेलीविजन के, हुकूमत पंजाब के। मंसूबा शुरू हो गया है। हमारी इस्तदा है कि इसके कोई समझौता नहीं करना चाहिए। दूसरी जानब सड़क तामीर करने वाले ठेकेदार का कहना है कि जो कथरा रोड की तामीर का काम आइंदा चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद सलीम, रूही, कोटछुट्टा। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बहावलपुर के ज़ेर इंतजाम तीसरे मैंगो फेस्टिवल में रंगो नूर का सैलाब आ गया। पहले रोज ही हजारों अफराद की बच्चों समेत शिरकत। दर्जनों मैंगो स्टॉल्स पर कामों की तरह इकसाम मौजूद। दुनिया भर में मकबूल पाकिस्तानी खजूरों की मुख्तलिफ इकसाम भी शो का हिस्सा हैं। कल्चरल, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस और महफिल मुशायरा ने शुरका को अपने शहर में जकड़ लिया। मजीद देखते हैं रजा मलिक की ये रिपोर्ट। बहावलपुर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के 3 रोजा ग्रैंड रूही मेले में मैंगो फेस्टिवल सज गया। पहले ही रोज हजारों शहरियों की शिरकत। मैंगो फेस्टिवल में दर्जनों स्टॉल्स पर सजी आमों की मुख्तलिफ अक़साम ने शुरका को खूब लुभाया। दुनिया भर में मकबूल पाकिस्तानी खजूर के स्टॉल्स पर अजवा, ढक्की, ज़ैदी, खुदरी समेत खजूर की दीगर अक़साम भी मौजूद थीं। मेले में दस्तकारी, बच्चों की पेंटिंग्स और खानों के स्टॉल्स भी मौजूद थे। फेस्टिवल में पेश की गई कल्चरल परफॉर्मेंसेज ने शुरका को अपने शहर में जकड़ लिया। फेस्टिवल में महफिल मुशायरा का भी इनकाद किया गया। मुल्क के मारूफ शुरा तहजीब हाफी, उमेर नजमी, अली जरियून ने मुशायरे में खूब दाद समेटी। मारूफ शायर अजहर फराग, अहमद सईद और अल्ताफ मलिक ने भी अपनी शायरी से समा बांध। तीसरे मैंगो फेस्टिवल में भी बच्चों के माबेन पेंटिंग्स के भी मुकाबले हुए। जिम्नास्टिक का शानदार मुजाहिरा भी किया गया। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस ने शुरका के दिल जीत लिए। स्नेक शो ने खूब दाद समेट। मेले की तकरीबात इतवार तक जारी रहेंगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ रजा मलिक, रूही, बहावलपुर। जलालपुर पीरवाला में विफाकी वजीर राना कासिम नून का हल्का अहबाब से इजहार तशक्कुर। सियासी शख्सियत के लिए मकामी होटल में पुरतकल्लुफ दोहराने का एहतमाम। वफाकी वजीर राना कासिम नून का जलालपुर पीरवाला के हल्का अहबाब और सियासी शख्सियात के लिए पुरतकल्लुफ दोहराने का एहतमाम। इस मौका पर राना कासिम नून ने रूही से गुफ्तगू में अपने इलाके में जारी तरक्याती कामों बारे बताया और मजीद प्रोजेक्ट्स लाने की ख्वाहिश का इजहार किया। हम समझते हैं कि दरियाए चनाब पर जो पुल है ये हर सूरत में बनेगा इंशाअल्लाह, और ये शहर सुल्तान और जलालपुर पीरवाला को कनेक्ट करेगा।
और फिर ये लिंक रोड्स बनेंगे जो मोटरवे के साथ लिंक होएगा। राना कासिम नून ने मजीद कहा कि असम्बली में न सिर्फ अपने हलके के मसाइल उजागर किए हैं बल्कि इनके हल के लिए भी भरपूर कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि दरियाए चनाब के मकाम पर जलालपुर को मुजफ्फरगढ़ डेरा गाजी खान से मिलाने के लिए पुल, लिंक रोड्स, मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल, मोटरवे इंटरचेंज, इंडस्ट्रियल स्टेट, स्कूलों कॉलेजेस की अपग्रेडेशन मेरी अवलीन तरजीह है। जारी मंसूबे के अलावा शुजाबाद और जलालपुर के बासियों को दर्जनों नए मंसूबे दिए जाएंगे। जोहराने में अनवा व अकसाम के खाने पेश किए गए। शुजाबाद और जलालपुर की मुमताज सियासी शख्सियात ने भी जोहराने में भरपूर शिरकत की। कैमरामैन शेख नदीम के साथ वक़ास सिद्दीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। लोधरा में गला मंडी के इंतखाबात पुरअमन तरीके से मुकम्मल। जा मोहम्मद अजहर सदर, मलिक मुलाजिम हुसैन जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। में गला मंडी के इंतखाबात और अमन तरीके से मुकम्मल हो गए। पहली बार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले जाम मोहम्मद अजहर और मुलाजिम हुसैन ने मैदान मार लिया। जाम मोहम्मद अजहर भारी अक्सरियत से सदर, जबकि मलक मुलाजिम हुसैन जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। 3 बार सदर रहने वाले मलक खलील अहमद नून लीग के मुंतखब अरकान असम्बली की भरपूर हिमायत के बावजूद हार गए। मेंबर इलेक्शन कमीशन मलक सरदार मोहम्मद ने इंतखाबी नताइज का ऐलान कर दिया। तमाम वोटरों, तमाम सपोर्टरों और कैंडिडेट का हमारे साथ ताउन रहा है, जिसके हम बहुत मशकूर हैं। आपने हर मौके पे आपने हमारे साथ दिया है। मलिक खलील अहमद अराई साहब ने 39 वोट लिए हैं, 39 वोट। बहुत बहुत मुबारक हो उनको, अच्छा वोट लिया है, बहुत अच्छा लिया। इलेक्शन में तारीखी कामयाबी हासिल करने वाले नौ मुंतखब सदर जाम मोहम्मद अजहर ने अपनी जीत को अपने जानसार साथियों और तमाम सियासी दबाव के बावजूद सीसा पिलाई दीवार की तरह साबित कदम रहने वाले वोटर्स के नाम किया। मैं सारे को पहले अपने सारे भिरावा मंडी वाले को सारे को जो है मुबारकबाद पेश कर रहा है। जद्दोजहद करके अच्छा इतनी लीड ना इनको इलेक्शन आ रहा है। साढ़े खिलाफ जो भी सियासी सरगर्मियां जो कुछ भी साढ़े दोस्त बहुत बाढ़ के जन सामने खड़े थे भाईजान, इंशाल्लाह उनको सबको मेरी तरफ मुबारकबाद पेश करना। नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी मुलाजिम हुसैन का कहना था कि हमारे मुखालफिन अपनी इबरतनाक शिकस्त पर शशदर हैं और इन्होंने हर सियासी पैंतरा आजमाया, मगर शिकस्त इनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जेडे सारे नाल खड़े रह गए, कंधे नाल कंधा मिलाए ने और सारे मुखालिफ सारे जोड़ी का नहीं बने। सारी मंडी को नाल घेन के चलसूं और इंशाल्लाह जो भी मसाइल हैं उनको हल करे। अपने दौर सदारत को खैराबाद कहने वाले जाम अजहर ग्रुप के कायद मोहम्मद तुफैल ठाकुर का कहना था कि उन्हें खुशी है कि गला मंडी में पसंद नापसंद और मौरूसियत की सियासत को खत्म करने में कामयाब हुए और जमहूरी रवायत को कायम किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी भारी लीड दी है। फौरी तौर पे इलेक्शन करा के 2 महीने पहले इलेक्शन करवा के मैंने अपना जमहूरी अमल जो मेरी जिम्मेदारी थी वो पूरी की और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बर वक्त तरीके से मेरी कामयाबी यही है कि मैंने इख्तियार मुंतकिल कर दिया। गला मंडी लोधरा के इंतखाबात में आजाद ग्रुप के उम्मीदवारान की फतह ने साबित किया है कि वोट और उसकी ताकत हमेशा कामयाब रहती है। 146 आरतियों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करके आइंदा 2 साल के लिए अपनी रहनुमा चुन लिए हैं। कामयाब उम्मीदवारों समेत इनके सपोर्टर्स की खुशी दीदनी है। कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ, हनीफ रूही, लोधरा। पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तीसरे मरहले में रजिस्ट्रेशन जारी। दरख्वास्तें 31 जुलाई तक जमा करवाई जा सकती हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को 230 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। वसूल होने वाली दरख्वास्तों की वेरिफिकेशन की जाएगी। धीरानी प्रोग्राम के दूसरे मरहले में 80 जोड़ों की इज्तिमाई शादी करवाई गई। मुल्तानी आम खुशबू, जायके और मयार के बायस दुनिया भर में अपनी मिसाल आप। मुल्तान सब्जी और फ्रूट मंडी में रोजाना 17,000 मन तक चौंसा आम फरोख्त होता है। मुल्तानी आम दुनिया भर में अपनी लज्जत, खुशबू और आला मयार के बाइस खुसूसी मुकाम रखता है। असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जी मंडी मुल्तान समी शेख का रोही न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि इस वक्त सब्जी मंडी में रोजाना 15 से 17,000 मन आम आ रहे हैं, जिनकी अकसाम, ग्रेड्स और क्वालिटी की जांच के बाद नीलामी की जाती है। आम की सप्लाई जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों खसूसन कबीरवाला, विहाड़ी, बूरेवाला, बहावलपुर और हारूनाबाद से आ रही है। इस टाइम पे ऑब्वियसली सप्लाई हमारी डेली फ्लक्चुएट करती है, कभी बारिशें ज़्यादा होती हैं, सप्लाई कम होती है, लेकिन तकरीबन 15 से 17,000 मन हमारा पर डे आम आ रहा है। यहाँ पे वो डिफरेंट क्वालिटीज़ और डिफरेंट ग्रेड्स का होता है। उसमें हम लोग वहाँ पे जो बॉक्सेस आते हैं उनको खोल के चेक करवा रहे होते हैं, उनकी ऑक्शन होती है,
और वो यहाँ से सप्लाई होते हैं पूरे पाकिस्तान में। समी शेख का मजीद कहना था कि इस साल मौसम बेहतर होने, बर वक्त बारिशों और धूप निकलने के बायस आम की पैदावार मयारी हुई और मिकदार में भी इजाफा देखा गया है। मुल्तानी आम की न सिर्फ पूरे मुल्क में तलब है बल्कि मिडल ईस्ट और यूरोप में इसकी एक्सपोर्ट भी जारी है। बरामदात से मुल्तान की मीशत को खातिर खा फायदा हो रहा है। आम की मशहूर अक़साम में अनवर इटोल, सफेद चौंसा, सिंदड़ी और दशहरी शामिल हैं, जिन्हें मुल्क में और बैरून मुल्क बेहद पसंद किया जाता है। मुल्तानी आम की जो क्वालिटी है, जो टेस्ट है, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। इस वक्त भी आप देखेंगे जो हमारा आम यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, जो आम जा रहा है मुल्तान डिवीजन से, वो सिर्फ साउथ पंजाब में नहीं पूरे पाकिस्तान में जाता है, फिर बाहर मुल्क पे एक्सपोर्ट होता है। इस टाइम पे हमारा एक्सपोर्ट्स का एक मेजर चंक हमारा मिडल ईस्ट की तरफ जा रहा है और यूरोप की तरफ भी जा रहा है, जहाँ पे मुल्तानी आम जो है बड़ा शौक से खाया जाता है। इसके टेस्ट और क्वालिटी की सब तारीफ। एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जी मंडी के मुताबिक इस साल सप्लाई में तकरीबन 20% इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में आम की कीमतों में तकरीबन 5 से 10% कमी आई है। मार्केट कमेटी के रेट सेटिंग मैकेनिज्म के तहत काश्तकार, व्यापारी, मिडल मैन और आखिर में रेडी या दुकानदार तक हर फ्री को मुनासिब मुनाफा दिया जाता है, ताकि आवाम को भी काबिल कबूल नर्ख पर आम फराहम हो सके। दूसरी तरफ कीमतों पर कंट्रोल न होने की वजह से रेडियों और दुकानों पर आम मनमाने नरखों पर फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। और यहां पर आपको बताएं कि वर्ल्ड स्नोकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड मास्टर स्नोकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने भारत के बरजीश दामानी को शिकस्त दे दी। बेस्ट ऑफ 7 फ्रेम फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने 4-3 से कामयाबी हासिल की।